Good morning. Just now I have read a comment of one of our subscribers. Okay, sir, in Live Mint, I have read a news that many employees of one NBFC are terminated, whether bank job is safe or not. This shows how much worried we are and how any piece of news can damage peace of mind of thousands of people, because they are not aware about the banking sector or other sectors. Any negative news comes, it pinches the mind of everyone. That is the strength of a negative news. You give thousands of positive news, it may not have has that much effect as any small pinch of negative news can do damage to your brain. First thing I will advise each one of you, don't try to link every news with your life. In this world of uncertainties, lot of negative news will come. But through this channel, I am trying to segregate the relevant news for you and the irrelevant news for you. Why I post so many videos about good news? Just to give you piece of that news that has some relevance to your journey towards success. Now the news referred is about a NBFC. And my earlier videos also I told you that NBFCs may lose business as time passes. And this is not only coronavirus linked. It has happened since September 2018. After September 2018, NBFCs are continuously losing their business due to many factors, many developments that happened in that sector. And the coronavirus has finally hit them hard. Non-banking finance companies are normally private companies. Their sponsor may be banks, their sponsor may be leading manufacturing companies, their sponsor may be some independent persons. They are operating in shadow banking. Shadow banking means the space that is not occupied by the banks. The NBFC on shorter terms and high interest rate, they offer the credit to people. When credit is easily available and banks are flush with fund, naturally the banks are now funding on liberal terms, so their chance of getting business of NBFC reduces. And that is the reason they are losing business and their employees are not required and they may be firing here and there. Does it mean in banking also banks are unsafe? Answer is no. As far as public sector banks are concerned, job is safe. A person joins the bank and he can safely retire from the same bank, provided he is hard worker, he is working as per the guidelines of the bank and never committed any fraud or any adventure that may lead to termination of his job. In banking also termination happens, but that is for a reason. The reason means the person is involved in illegal activities. The person has inflicted loss on the organization. Then management goes for this stern action like termination. But all other employees, their job is safe because they will not be asked to leave the organization only on account of increase of business or decrease of business, or meeting certain targets and not meeting certain targets. No. In banking, no such terminations take place, especially in the public sector banks. So public sector banks' job is safe, provided you are working with sincerity. You are working according to the guidelines of the bank. So you need not have unnecessary panic by one news or another that is emerging in newspapers. I thought it fit to make this video because such type of news may derail preparation of many candidates like the candidate who has commented just now. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे.
अब आप देखिए कि कितना नेगेटिव खबरों का कितना प्रभाव पड़ता है। अब एक छोटी सी न्यूज़ आई कि एक एनबीएफसी में कुछ एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने इमीडिएटली पोस्ट किया कि सर एनबीएफसी ने निकाल दिया तो बैंक भी निकाल देंगे। देखो कोई लिंक नहीं है दोनों का, पर फिर भी एक जो नेगेटिव खबर होती है आपके दिमाग में कहाँ तक अफेक्ट डाल सकती है, ये उस कमेंट से पता लगता है। मैं बार बार आपको छांट छांट के पॉजिटिव न्यूज़ क्यों ला के दे रहा हूँ, ताकि आपके अंदर ये भावना बनी रहे कि मुझे सारी दुनिया से अलग होकर पढ़ाई करते रहना है। इन दिनों में दुनिया भर की नेगेटिव खबरें आएंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रहा है पूरा विश्व, तो खराब खबरें तो आएंगी, पर ये जरूरी नहीं है ये सारी खराब खबरें आपको अफेक्ट करने वाली हैं, ये जरूरी नहीं है। आप तैयारी कर रहे हो बैंकिंग इंश्योरेंस की, वो इससे आइसोलेटेड है अभी आज की डेट के अंदर, अपना बिजनेस कर रहा है, वहां पर अभी भी वैकेंसीज आनी है। तो क्या एक एनबीएफसी में हुई घटना बैंक से रिलेटेड है? नहीं, ये घटना तो सितंबर 2018 से प्रभावित है, कोरोना से नहीं है। सितंबर 2018 के आसपास के आप मेरे वीडियोस देखिए, उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था कि धीरे धीरे एनबीएफसी का बिजनेस कम होता जाएगा और बैंकिंग बिजनेस बढ़ता जाएगा। जब बैंकों के पास एडिक्वेट लिक्विडिटी है, आसान टर्म्स पे लोन दे रहे हैं, तो लोग नेचुरली बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए। एनबीएफसी का बिजनेस उन दिनों में फ्लोरिश होता है जब बैंक्स लोन नहीं कर पाते, तो जो वो स्पेस होती है उसको हम शैडो बैंकिंग बोलते हैं, वहां पर हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर एनबीएफसी वो लोन प्रदान करते हैं। जब लिक्विडिटी एक्सेस होती है, मान लो आज की डेट में 8 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने रिजर्व बैंक के पास रखा हुआ है, तो बहुत आसान किस्तों पे आसान शर्तों के ऊपर बैंक लोन दे रहे हैं, तो एनबीएफसी का बिजनेस तो बढ़ेगा नहीं ना। एनबीएफसी के पास तो आदमी तब जाएगा जब कोई बैंक उसको लोन नहीं देगा। अगर बैंक उसको सस्ते रेट पे आसानी से लोन दे रहा है, तो उन दिनों में एनबीएफसी का बिजनेस इतनी तेजी से नहीं बढ़ सकता, और यही कारण है कि एनबीएफसी का बिजनेस गिरता जा रहा है। जब गिरता जा रहा है तो उनको एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं है, तो वो एक नॉर्मल फायरिंग है। अब क्या बैंकों में भी ऐसा होता? नहीं होता। बैंकों के अंदर, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि बिजनेस बढ़ रहा है या घट रहा है क्योंकि बैंकों में हमेशा स्कैर्सिटी ऑफ स्टाफ रहता है। अब क्योंकि स्कैर्सिटी ऑफ स्टाफ है, तो स्टाफ जब तक नौकरी करता रहता है जब तक वो रिटायर नहीं होता। आपने ज्वाइन किया, आप एक सीधे सच्चे एम्प्लॉई हो, आप वहीं से रिटायर होकर निकलेंगे। पर यदि किसी एम्प्लॉई ने कोई फ्रॉड किया है, अगर किसी एम्प्लॉई ने कोई बैंक को नुकसान पहुंचाया है, तो नेचुरल बैंक के पास अधिकार होता है उसको टर्मिनेट करने का। वो रेयर केसेस होते हैं, पर अधिकांश लोग बैंक ज्वाइन करते हैं और वहां से रिटायर होकर निकलते हैं। तो ये अनड्यू वरी अपने दिमाग पे मत डालिए कि क्या बैंक में भी नौकरी से निकाल देंगे, क्या सब जगह लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर देंगे। देखो खबरें आएंगी, हर सेक्टर को बैंकिंग से जोड़ के देख लेना, हर नेगेटिव खबर को अपने दिल में डाल लेना, ये सही बात नहीं है। इस समय आपका काम है अच्छी अच्छी खबरें पढ़िए, अच्छी न्यूज़ को पढ़िए और मन लगा के पढ़ाई करिए, वो आपको आगे ले जाएगा। इस तरह की खबरें आपके अंदर एक मतलब नेगेटिविटी पैदा करेंगी और आपका ही नुकसान करेंगी, किसी और का नुकसान नहीं है। वो तो न्यूज़पेपर है, उसको तो न्यूज़ छापनी है, जो भी न्यूज़ मिलेगी छापेगा, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता कि इसका प्रभाव किसके ऊपर क्या पड़ेगा। जो अखबार है उसका तो काम ही है ना खबर देना, अच्छी भी बुरी भी। ये तो हमें सोचना है कि हमें कौन सी खबर पढ़नी है या कौन सी खबर का असर अपने ऊपर लेना है या नहीं लेना है। सो ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।